एक्सप्लेन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्लोरीन इन द 14 NMR। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले है निकालेंगे PF5 का। तो देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, P F F F F F 5F है, 5 फ्लोरीन है। इसकी शेप का नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। जो कि रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन जो होता है वो जो है बेरी पस्यूडोरॉट एस्पिरिडोरोशन देता है, की वजह से यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है वो उसके एटम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। किस पर? रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन के जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और देयरफॉर इसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे 19 MR में वो शो करेगा सिंगल पीक। तो पहली बात तो ये है कि हम इसे कह सकते हैं एट रूम टेम्परेचर ऑल फ्लोरीन atoms are equal due to Berry pseudo rotation, okay। Therefore in this molecule the 19 fluorine NMR shows a single peak of 1:1 doublet due to coupling with P, that is I is equals to 1/2 by 2Ni plus 1, that is 2 multiply 1 multiply 1/2 plus 1, that is equals to 2, which is doublet, okay। So and further we can say that इसके आगे हम ये बोल सकते हैं कि it has been found that even at low temperature the NMR cannot differentiate the fluorine atom, okay, fluorine atoms, and though we can say that fluorine nature ceases, okay। So we will go through the next one, big part, that is Cl with the next molecule ClCH2F। इसमें क्या होगा? तो अगर हम बात करें इसके हाइड्रोजन की स्पिन की तो ये भी 1/2 होगा। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के सिग्मा विल बी स्प्लिटेड बाय 2 अटैच्ड हाइड्रोजन, ओके, जो कि इसके साथ अटैच्ड है। पिछले वाले में कोई हाइड्रोजन नहीं था, दैट्स वाई वो स्प्लिट नहीं हो पाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द फ्लोरीन signal will be
tripleted by two attached hydrogen atoms and therefore will appear as triplet. How? I just explained. When you use 2in plus 1 method, so here I is 1 upon 2 and n is 2 and this is plus 1, 2 to cancel out. This 2 into 1 is 2 and 2 plus 1 is 3, which is triplet. So this is the answer of your B part. Now we go to the C part of this C number question, that is CS3, CS2 and F. So in this molecule we can say that fluorine NMR peak of fluorine will also appear as triplet because of 2ni plus 1 method, which says that is 2 into 2 into 1 upon 2 plus 1, 2 to cancel out, this is 2 plus 1, that is equals to 3, which is a triplet. Okay, because of here we can see that is 2 hydrogen, because of 2 hydrogen the n is 2 and here the spin of this fluorine also is 1 upon 2 and that's why we get the answer is triplet. Okay, so this is it about this question. And if we talk about the fluorine application of fluorine and phosphorus, I just tell you once again about this is, so the application of fluorine and so I just tell you about the application of fluorine NMR. Application of fluorine NMR. So here first of all there are so many application of fluorine NMR. First, one by one we will talk about it. That is 19 fluorine NMR. So first point is that it is possible to achieve incorporation of fluorinated analogous for some amino acids. Okay, so it is possible to achieve, what we can achieve, properly formation of fluorinated analogous of some amino acid. Okay, and simply we can say that is amino acid comes in the proteins. So because protein we eat in as a diet, तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो हम डाइट के तौर पे हम यूज़ करते हैं. सपोज ये तो हो गया कि हम फ्लोरिनेटेड एनालॉगस को, जो कि एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन होता है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 4 फ्लोरो फिनाइल एनिलीन है, एनाइलिन है, एलाइन 9 है, तो 4 फ्लोरो फिनाइल एनालाइन जो है उस जो इज़ इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि वो मतलब प्रॉपरली बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने के लिए, हमारी बॉडी के सेल्स को ग्रोथ करने के लिए. ठीक है, ये हमारी बॉडी के सेल को ग्रोथ देने के लिए होता है. इसका काम क्या है, हमारी बॉडी के सेल्स में प्रोटीन का देना, सेल्स के अंदर. ठीक है,
तो इसमें कई सारे बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन है जिसमें आपके शरीर के अंदर ये चेक किया जाता है कि फ्लोरीन आपके शरीर में कितना अमाउंट में है और कितना नहीं है, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। तो इसमें इसका फ्लोरीन एनएमआर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया पहला मेथड, पहली एप्लीकेशन फ्लोरीन एनएमआर की। अब हम बात करेंगे इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस। सो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि जिस तरह से हमने फ्लोरिनेटेड एनालॉगस प्रोटीन का निकालने की कोशिश करी थी, उसी तरह से हम फ्लोरिनेटेड मतलब ऐसा कंपाउंड जो जिसके अंदर फ्लोरीन है, ऐसे फ्लोरिनेटेड एनालॉगस को निकालने के लिए किसके अंदर न्यूक्लिक एसिड का निकालने के लिए हमें किस न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, या तो वो आरएनए होगा या तो वो डीएनए होगा, और इन दोनों के क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, और बेस या हम उसको शुगर रिंग्स भी कह सकते हैं, शुगर रिंग्स टाइप की। आपको पता है आरएनए का स्ट्रक्चर एक हेलिक्स का होता है और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे उन्हीं रिंग्स की बात करें कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर कितना फ्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए भी हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर फ्लोरीन के अमाउंट को चेक करने के लिए भी हम इसका मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड्स। अब आती है बात इसके चौथे मेथड की। चौथा मेथड ये कहता है कि अगर फ्लोरीन के केमिकल शिफ्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट पे, ठीक है, जो फ्लोरीन के केमिकल शिफ्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट में, दे आर वेरी सेंसिटिव। ओके, बिटवीन किसके बीच में सेंसिटिव होते हैं, केमिकल शिफ्ट अगर हम किसी बड़े बॉन्ड या फ्री स्पेस के लार्ज बॉन्ड के बीच में निकाल रहे हो तुम, और इन रीजंस की वजह से पॉसिबल होता है कि हम उसके अंदर के जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उनको अगर उनके एविडेंस निकाल लें, किसके द्वारा, फ्लोरीन एनएमआर के द्वारा, तो हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। अगर केमिकल शिफ्ट देखो, हमें पता है फ्लोरीन का जो केमिकल शिफ्ट होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंट, और केमिकल शिफ्ट जो होता है बाउंड और फ्री स्पेस के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। किसके बीच में, जो केमिकल शिफ्ट होता है किसके बीच में, बाउंड और फ्री स्पेसेस के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से कि पॉसिबल हो कि हम उसके अंदर कितना रिसेप्टर बन रहा है, रिसेप्टर लिगेंड कितने बन रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लोरक्लोरोबेंजीन सल्फोनामाइड, इसके 2 आइसोजाइम्स हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर 2 कार्बनिक एनहाइड्रस निकलते हैं, एक Ca प्लस एनहाइड्रस फर्स्ट Ca फर्स्ट और एक Ca सेकेंड, और इन दोनों के अंदर जो फ्लोरीन की प्रेजेंस है उसको निकालने के लिए हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। ये कौन से हैं, ये आपके ह्यूमंस के अंदर के 2 एंजाइम्स हैं, जो कौन से हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रस, ये आपके इन दोनों एंजाइम से पाए जाते हैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ वाला ये कहता है कि जो फ्लोरीन एनएमआर है उसको हम ऐसे प्रोटीन को भी स्ट्रक्चर करने के लिए निकाल सकते हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स के अंदर भी फ्लोरिनेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर जो फ्लोरिनेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी कई सारी पोजीशंस जो होती हैं वो फ्लोरीन के अंदर सिंगल रेजोनेंस शो करती हैं। ठीक है, जब प्रोटीन डीनेचर्ड का होता है, डीनेचर्ड मतलब उसमें फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो इसमें नेटिव कन्फर्मेशन ये है कि बड़े बड़े जो शिफ्ट होते हैं उनमें, चाहे वो अपफील्ड हो या डाउनफील्ड हो, उन दोनों को ऑब्जर्व कर सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आती है बात इसका 6th पार्ट,
जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो ड्रग्स एनालिसिस का काम भी यही करता है, ड्रग्स का एनालिसिस भी ये करता है। कैसे, ये सुनिएगा। ड्रग्स का एनालिसिस करने के लिए ड्रग्स एनालिसिस, तो जैसे फ्लोरीन एमआर जो है हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स को ये चेक करता है कि उसके अंदर कितनी क्वालिटेटिव है, कितनी क्वांटिटेटिव है, या कितना डायरेक्शनल उसके अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है, कितने पर पीपीबी लेवल पर। पीपीबी लेवल मीन्स टू से कि वो कितना पार्ट्स पर बिलियन पर जा रहा है। ये सब को पॉसिबल हम किससे कर सकते हैं, फ्लोरीन एनएमआर से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 फ्लोरो यूरेसिल 5 फ्लोरो यूरेसिल जो है क्या करता है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। दिस इज़ अ एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। और एंटी कैंसर ड्रग का कुछ साइड इफ़ेक्ट शो करने के लिए, ये एंटी कैंसर ड्रग होने के साथ इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारे हार्ट की इश्यूज़ कर सकता है, हार्ट को कार्डियो टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर फ्लोरीन एनएमआर पास कराते हैं, ये चेक करने की कितना फ्लोरीन इसके अंदर प्रेजेंट है। फ्लोरीन एनएमआर ये चेक करेगा कितनी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर है और कितना ये इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑल अबाउट जितने भी साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन से हो सकते हैं पेशेंट को, तो उसमें हम कार्डियो टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए एनएमआर यूज़ करते हैं इसका। ओके, तो ये हो आपके 6 के 6 मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस का एप्लीकेशन। तो फॉस्फोरस की भी कुछ खास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस छोटी सी बात है कि फ्लोरीन एनएमआर का अगर हम एप्लीकेशन पढ़ें तो फर्स्ट मेथड इज़ दैट फॉस्फोरस एनएमआर जो होता है उसको हम मेनली सॉइल, वाटर और कोई भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया पहला। दूसरा कि फॉस्फोरस जो होता है वो एग्रीकल्चर के अंदर, फॉस्फोरस ट्रांसफॉर्मेशन जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, नेचुरल इकोसिस्टम, उसमें भी हम स्टडी करते हैं। ऑल अबाउट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वे है कि जो मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ, मतलब मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, उसमें भी हम इसकी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से बायोफॉस्फोनेट जो है वो उसको रिजॉल्व करके उसका स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं, ठीक है। विद ये हो गया। उसके बाद सिंगल इंटेंसिटी वाले जो होते हैं वो रिलेट करते हैं उनकी कंसंट्रेशन, और हम इसी कैलिब्रेशन प्रोसीजर के थ्रू हम इसमें कई सारे बायो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल चीज़ों के लिए। और जो ये PNMR है, फॉस्फोरस एनएमआर है,